നിയമങ്ങളല്ല മാനവികതയാണ് നയിക്കേണ്ടത്. വിയോജിപ്പുകളും പകപോക്കലുകളുമല്ല വേണ്ടത്. ഈ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിൽ പരസ്പരം സഹകരിച്ച് പ്രശ്നങ്ങളെ നേരിടുകയാണ് വേണ്ടത്. ഗവൺമെന്റിനോട് വീണ്ടും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ജനങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ ഇല്ലാതാക്കുകയാണ് ആദ്യം വേണ്ടത്. ആപത്ത് വരുമ്പോൾ നിയമങ്ങളല്ല, രക്ഷപ്പെടുത്തുവാനുള്ള മാർഗങ്ങളുമാണ് ആദ്യം നോക്കേണ്ടത്. അല്പം മുൻപ് ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവിലൂടെ ശ്രീമതി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി യോഗി ആദിത്യനാഥിനോട് പറഞ്ഞവയാണിതെല്ലാം. നിയമങ്ങളല്ല മാനവികതയാണ് നയിക്കേണ്ടത്. വിയോജിപ്പുകളും പകപോക്കലുകളുമല്ല വേണ്ടത്. ഈ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിൽ പരസ്പരം സഹകരിച്ച് പ്രശ്നങ്ങളെ നേരിടുകയാണ് വേണ്ടത്. ലോക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ തന്നെ കോൺഗ്രസ് വളണ്ടിയർമാരെ തയ്യാറാക്കുകയും അവർ വഴിയായി ജില്ലകൾ തോറും ഹെൽപ്പ് ലൈനുകൾ തുറക്കുകയും ജനങ്ങളുടെ ഭക്ഷണവും കുടിവെള്ളവും അവർക്ക് ആവശ്യമായ മറ്റു സഹായങ്ങളും ചെയ്തുകൊണ്ടുമിരിക്കുന്നു. ഹൈവേകളിൽ ടാസ്ക് ഫോഴ്സുകളെ തയ്യാറാക്കുകയും പലായനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തൊഴിലാളികൾക്ക് കഴിയുന്നത്ര സഹായങ്ങൾ എത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. രാപകലുകളില്ലാതെ കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രവർത്തകർ ലോക്ഡൌണിൽ അകപ്പെട്ട ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സഹായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലാണ്. തൊഴിലാളികൾ വെറും പൗരന്മാർ മാത്രമല്ല, ഈ രാജ്യത്തിന്റെ നട്ടെല്ലാണ്. അവരിലൂടെയാണ്, അവരുടെ ചോരയും നീരും ഉപയോഗിച്ചാണ് നാം ഇന്ന് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ സൗകര്യങ്ങളെയും കെട്ടിപ്പടുത്തത്. 3 ദിവസങ്ങളായി ഞങ്ങളുടെ ബസ്സുകൾ അനുമതി ലഭിക്കുന്നതും പ്രതീക്ഷിച്ച് അതിർത്തിയിൽ തൊഴിലാളികൾക്കായി കാത്തുകിടക്കുകയാണ്. അതിർത്തിയിലുള്ള ബസ്സുകളെ 600 കിലോമീറ്റർ അകലെ ലക്നൌവിലെത്തിച്ച് പെർമിഷൻ നേടുക എന്നത് സാധ്യമായ കാര്യമല്ല. ഗാസിയാബാദിലും നോയിഡയിലുമുള്ള പിക്കപ്പ് പോയിന്റുകളിൽ നോഡൽ ഓഫീസർമാരെ നിയമിച്ച് ഈ വാഹനങ്ങൾക്കുള്ള നിയമ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കാമായിരുന്നു. ബസ്സുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വാഹനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ 3 ദിവസമായി പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തുകിടക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഈ വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിരുന്നുവെങ്കിൽ എത്ര ആയിരക്കണക്കിന് പലായനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാധുക്കളെ സുരക്ഷിതമായി അവരുടെ നാടുകളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ഈ വാഹനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വിട്ടുതരാം. അതിൽ നിങ്ങൾ BJPയുടെ കൊടി കെട്ടുകയോ സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിക്കുകയോ നിങ്ങളുടേതാണെന്ന് തന്നെ പറയുകയോ എന്ത് വേണമോ ചെയ്തോളൂ. പക്ഷേ ഇത് സേവനം ചെയ്യേണ്ട സമയമാണ്. ജനങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളിൽ നിന്നും കരകയറ്റുകയാണ് ഇപ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്. പലായനം ചെയ്യുന്ന ജനങ്ങളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, കോൺഗ്രസിന്റെ ഓരോ പ്രവർത്തകരും നേതാക്കളും നിങ്ങളുടെ ഏത് ആവശ്യങ്ങൾക്കും നിങ്ങളോടൊപ്പം നിങ്ങളെ സഹായിക്കാനായി മുന്നിലുണ്ടാകും. അവരെ നിങ്ങളുടെ ഏത് ആവശ്യങ്ങൾക്കും സമീപിക്കാവുന്നതാണ്. കൂടാതെ ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പറുകളും പ്രയോജനപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. ഗവൺമെന്റിനോട് വീണ്ടും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ജനങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ ഇല്ലാതാക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്. ആപത്ത് വരുമ്പോൾ നിയമമല്ല, രക്ഷപ്പെടുത്തുവാനുള്ള മാർഗങ്ങളുമാണ് ആദ്യം നോക്കേണ്ടത്. തൊഴിലാളികൾക്ക് വേണ്ടി ഈ വാഹനങ്ങൾ ഓടിക്കുവാനുള്ള അനുമതി നിങ്ങൾ നൽകണം. കൂടുതൽ എത്ര വാഹനങ്ങൾ ആവശ്യമായി വന്നാലും അവ എത്തിക്കാനും ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ്. ശ്രീമതി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി പറഞ്ഞു. नमस्कार, मैं आप सबसे कुछ बातें करना चाह रही थी। देखिए, काफ़ी समय से हम देख रहे हैं कि हमारे प्रवासी भाई बहन भीषण परिस्थितियों में, कड़ी धूप में, बगैर खाए पिए पैदल अपने गांव की ओर चल रहे हैं। ये लोग देश भर से आ रहे हैं, कोई गुजरात से आ रहा है। कल मैंने एक वीडियो देखा, एक लड़का जम्मू कश्मीर से चलकर सहारनपुर तक गया और उसको आगे बिहार तक जाना था। इसी तरह से आप सब ने देखा कि कई बहनें गर्भवती हैं। गर्भवती होते हुए 6 घंटे 8 घंटे कड़ी धूप में चल रही हैं। कुछ लोग अपने बच्चों को गोद में लेके जा रहे हैं, कुछ टूटी हुई साइकिलों पर जा रहे हैं। एक और वीडियो मैंने देखा कि एक दादी दादा अपने पोती पोतों को उठाकर, इस तरह से दादाजी उनको उठाकर एक झूला सा बनाया था, उसमें उनको रख के उठाकर चल रहे थे। अब हम सबको अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। ये सिर्फ भारत के लोग नहीं हैं, ये भारत के वो लोग हैं जो भारत की रीढ़ की हड्डी हैं, जिन्होंने ये इमारतें बनाई जिनमें हम रह रहे हैं, जिनके खून और पसीनों से ये देश चलता है। हम सबकी जिम्मेदारी है इनके प्रति, मेरी है, आपकी है, सरकार की है, हर राजनीतिक दल की है। इसलिए मैं समझती हूँ कि ये राजनीति करने का समय नहीं है। बहुत ही स्पष्ट हूँ कि हर राजनीतिक दल अपने राजनीतिक परहेजों को दूर करते हुए सकारात्मक भाव से, सेवा भाव से लोगों की मदद में शामिल हो। तो उत्तर प्रदेश की जो कांग्रेस पार्टी है, इसी भावना को लेकर जैसे ही लॉकडाउन की अनाउंसमेंट हुई, उसके अगले दिन हमने हर ज़िले में वॉलंटियर ग्रुप बनाए, जिसको हमने कांग्रेस के सिपाही का नाम दिया। इन वॉलंटियर ग्रुप्स के ज़रिए हमने हेल्पलाइन जारी करी हर ज़िले में, और दिन रात हम खाना राशन बांटने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा हमने सांझी रसोइयाँ खोली।
उसके अलावा हमने हाईवे की टास्क फोर्स बनवाए जो हाईवे पे जो चल रहे हैं उनकी मदद के लिए है। तो तमाम ऐसे कार्य हमारे बड़े से बड़े लीडर और हमारे ग्रामीण स्तर के कार्यकर्ता, हमारे जिला स्तर के कार्यकर्ता अपने ही साधनों से ये काम दिन रात कर रहे हैं। और इस काम के ज़रिए हमने अब तक 67 लाख लोगों की मदद की है। उसमें से 60 लाख के करीब उत्तर प्रदेश में ही हैं और 7 लाख लोग ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश के बाहर फंसे हुए थे, जिनको खाना राशन की ज़रूरत थी और जिनका वापस आने के लिए हम कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। हमारी एक सेंट्रल हेल्पलाइन भी है, उसके ज़रिए भी हम लगातार दिन रात कोऑर्डिनेशन करते हैं। तो हम मदद करना चाह रहे हैं। हमारी भावना शुरू से सकारात्मक रही है और सेवा का भाव हो रहा है। इसी भाव से हमने अपने सुझाव मुख्यमंत्री जी को दिए और सकारात्मक रूप से ही दिए कि देखिए आपको ठीक लगे तो आप ये चीज़ें कर लीजिए। जहाँ जहाँ हमें लगा कि वो कुछ अच्छा कर रहे हैं हमने उनकी तारीफ भी की, हमने उसका स्वागत किया, उन कदमों का स्वागत भी किया। कुछ समय से हम कह रहे थे कि यूपी रोडवेज की जो बसें हैं उनको प्रवासी भाई बहनों के लिए उपलब्ध करा दीजिए, ताकि उनको जो पैदल चल रहे हैं वो बसों में बैठकर बसों में बैठकर सुरक्षित तरह से अपने घर गांव पहुंच पाए। तो हम काफ़ी समय से ये सुझाव दे रहे थे, ये मांग कर रहे थे। जब एक दिन कई हादसे हुए, कई एक्सीडेंट हुए और हमने देखा कि यूपी की रोडवेज की जो बसें हैं वो अभी भी सक्रिय नहीं हुई हैं, तो हमने एक मुख्यमंत्री जी को एक चिट्ठी लिखी कि हम 1000 बस को उपलब्ध करेंगे। गाज़ियाबाद और नोएडा बॉर्डर पर हम इन बसों को रोक देंगे और आप अगर अनुमति देंगे इसके संचालन के लिए तो जो प्रवासी भाई बहन दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र से चल रहे हैं उनको हम इन बसों में बिठाकर अपने घर तक पहुंचा देंगे। तो अगले दिन मुख्यमंत्री जी ने ये ऐलान किया कि यूपी रोडवेज की 12,000 बसें हैं, इन्हीं का इस्तेमाल होगा और आपकी बसों की ज़रूरत नहीं है। तो हमने 17 तारीख को सुबह 500 बसें गाज़ियाबाद में खड़ी की थी, हमने उनको वापस भेज दिया। अगले दिन उनसे एक और चिट्ठी मिली कि आप अपनी लिस्ट दे दीजिए और 1000 बस की आप लिस्ट दे दीजिए, उसमें चालक का नाम होना चाहिए, परिचालक का नाम होना चाहिए, फिटनेस सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ आदि होना चाहिए, ये हमारे पास पहुंचा दीजिए। तो हमने उनको धन्यवाद दिया कि आपने हमें अनुमति दी है बसों को चलाने के लिए, आपको हम लिस्ट उपलब्ध कर देंगे। तो 4-5 घंटों बाद हमने वह लिस्ट उपलब्ध कर दी। फिर 11:30 बजे रात को उनसे एक और चिट्ठी मिली कि आप अपनी 1000 बसें लखनऊ पहुंचा दीजिए कल सुबह 10 बजे। तो इसमें हमने कहा कि देखिए हमारी बसें खाली दिल्ली से लखनऊ जाएंगी। इन बसों का मकसद ही ये था कि गाज़ियाबाद और नोएडा से एनसीआर क्षेत्र से जो चल के जा रहे हैं उनको हम बिठाकर उत्तर प्रदेश के गांव और ज़िलों में ले जाएं। तो इन बसों का लखनऊ तक खाली चलना तो पूरे मकसद को ही ख़त्म कर देता है। तो हमने उनसे ये सुझाव दिया कि देखिए हम गाज़ियाबाद नोएडा में इन बसों को तैयार रख लेंगे, आप परमिट दे दीजिएगा। फिर ये पूरा राजनीतिक सिलसिला शुरू हुआ कि आप हमें परमिट दे रहे हैं, लिस्ट दे रहे हैं, लिस्ट में कुछ गलत नाम है, जो भी है। मैं इन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहती और मैं सरकार पर सवाल भी नहीं उठाना चाहती। अगर उस लिस्ट में कुछ ऐसे नंबर हैं जो गलत हैं, कोई बात नहीं, हम एक नई लिस्ट भी उनको दे सकते हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि 17 तारीख को 500 बसें हमने गाज़ियाबाद बॉर्डर पे खड़ी की थी। अगर वो 500 बसें चली होती तो कम से कम 20,000 लोग घर सही सलामत पहुंच जाते। कल हमने 900 बसें, 500 बसें राजस्थान के बॉर्डर पर और राजस्थान यूपी के बॉर्डर पर और 300 से अधिक बसें, जिसकी पूरी टोटल संख्या 900 के करीब थी, हमने गाज़ियाबाद बॉर्डर पे, दिल्ली बॉर्डर पे हमने उपलब्ध कराई। अब अगर ये बसें चली होती तो कल 36,000 और आज 36,000 लोग अपने घर के लिए सही सलामत सुरक्षापूर्ण रवाना हो जाते। लेकिन हम इस राजनीतिक सिलसिले में उलझे रहे,
उन्होंने कहा कि लिस्ट गलत है, कुछ ये हो रहा है, वो हो रहा है। हम बसें हमारी पहुंच गई हैं। कल 4 बजे से हमारी बसें बॉर्डर पे खड़ी थी। उनको आगे परमिट यूपी के, जहाँ पे उन्होंने कहा था कि यहाँ पे हमें गाजियाबाद और नोएडा में 2 पॉइंट्स दिए थे, यहाँ तक पहुँचाइए, वहाँ जाने का परमिट ही नहीं दे रहे हैं यूपी के अंदर। तो बसें खड़ी रहीं, आज भी खड़ी हैं। अब मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, 4 बजे 24 घंटे हो जाएंगे कि ये बसें उपलब्ध हैं। अगर आपको इस्तेमाल करनी है तो इस्तेमाल करिए, हमें अनुमति दीजिए। आपको भाजपा के झंडे लगाने हैं, इन पे अपने भाजपा के स्टिकर लगाने हैं तो बेशक लगाइए, बेशक लगाइए। आपको अगर कहना है कि आपने उपलब्ध कराई हैं तब भी कराइए, लेकिन इन बसों को चलने दें। क्योंकि जब तक हम इस राजनीतिक उलझन में पड़े रहे हैं ना, जब तक आप अजीब अजीब से बयान दे रहे हैं और तमाम इश्यूज उठा रहे हैं, तब तक हम कम से कम 92,000 लोगों को घर पहुंचा सकते थे। और वही 92,000 लोग आज धूप में चल रहे हैं, उनके सामने तमाम मुसीबतों को झेलते हुए चल रहे हैं। तो मैं सिर्फ मुख्यमंत्री जी से ये आग्रह करना चाहती हूँ, हमारी बसें वहाँ पे 4 बजे तक खड़ी हैं। आपको इस्तेमाल करनी है तो आप हमें परमिट दीजिए, अनुमति दीजिए कि हम उनका संचालन कर सकें। अगर आपको नहीं इस्तेमाल करनी है तो भी कोई बात नहीं, हम उनको वापस भेज देंगे। हमने 3 दिन पहले भी वापस भेज दिया था 500 बसों को, हम वापस भेज देंगे। जिस तरह से हम लोगों की मदद कर रहे हैं, जिस तरह से हमारे लोग हर ज़िले में, हर शहर में, हमारे कार्यकर्ता प्रवासी भाई बहनों के और लॉकडाउन और महामारी से जो पीड़ित लोग हैं उनकी मदद कर रहे हैं, उस तरह से हम करते रहेंगे। हमें कोई परवाह नहीं है कि आपकी बसें हैं या हमारी बसें, हम सिर्फ एक सेवा भाव से मदद करना चाह रहे थे। तो मैं कहना चाहती हूँ अपने ख़ास तौर से अपने प्रवासी भाई बहनों से जो इस संकट में हैं और जो पैदल चल के जा रहे हैं, कि कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता आपके साथ है। आप उत्तर प्रदेश के जिस ज़िले से, जिस शहर से गुजरेंगे, हमारे लोग आपको मिलेंगे, आपको खाना उपलब्ध करेंगे, आपके लिए पानी उपलब्ध करेंगे, आपकी कोई भी सुविधा की ज़रूरत हो वह उपलब्ध करेंगे। हमारी जो क्षमता है उससे हम पूरी तरह से आपको मदद करने की कोशिश करेंगे और हम आपके साथ इस संकट में खड़े हैं। धन्यवाद।